नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक ये जमानत उनकी लागू रहेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया गया है। 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मामले में 3 जज नियुक्त करेंगे। यानी जब तक ये मामला 3 जजों की बेंच में सुनवाई चलेगी तब तक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अभी रिहाई संभव नहीं है। अभी फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि अभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। काफी बड़ी यहां पर जीत आप इसे बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. No, the court basically observed that insofar as his arrest is concerned, there are certain aspects on necessity of arrest, whether it was necessary or not, legal aspects, which have to be examined by a larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the Enforcement Directorate matter. So therefore the question is ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty. Now in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement. Does that also superimpose itself on the section 19 requirements is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. Will Mr. Kejriwal be released today? No, so in the ED matter he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court, and that bail we should, its hearing is on 17th of this month. And that is not a merits bail, it's a standard bail. Unlike section 45 PML, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we will see what happens in that, but after this we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get relief very soon. तो ईडी के मामले में यहां पर बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अंतरिम जमानत हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, लेकिन रिहाई अभी संभव नहीं है क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, और अगर आम आदमी पार्टी की भाषा में बोले तो ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अंतरिम जमानत उन्हें दे दी है, यानी एक तरफ से राहत मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ से रिहाई संभव नहीं, कैसे समझे? जमात तो उनको मिली क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, चैलेंज के जब सुनवाई हुई तो उनको अंतिम जमात दे दी गई है। लेकिन राहत अभी इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी कोई रिहाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भी बेंच अब जो फाइल है वो सीधा 3 जजों की बेंच में जाएगी, वहां सुनवाई की जाएगी, वहां पर पूरी तरह से उसकी स्टडी करी जाएगी कि आखिरकार जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो अंतिम जमात दी गई है उसमें किस कारण दी गई है, क्या सबूत ऐसे पेश किए गए हैं आम आदमी पार्टी के वकील की तरफ से और जो ईडी ने दिए हैं, उसको दोनों मैच किया जाएगा। उसके बाद कहने की राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो मुश्किल है अरविंद केजरीवाल की पदी बरकरार है, क्योंकि उसके बाद सीबीआई का जो केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि रिहाई होना संभव नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब देखना है कि आज सुनवाई होती है, अगर वो सुनवाई आगे बढ़ती है
क्या वहां से यहाँ से भी राहत मिलती है या फिर जो रिहाई दी गई है वो कैंसिल होती है? ये अच्छा अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आज की जिस बेंच ने अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी, उसके साथ ही उन्होंने जो मैटर है, ये पूरा मामला एक अलग 3 सदस्यीय बेंच को ट्रांसफर किया है। क्या माना जाए आखिर ये जो पूरा मसला है, ये 3 सदस्यीय बेंच को क्यों ट्रांसफर हुआ, उसके क्या मायने हैं, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये जो कोर्ट का मामला है, जब निश्चित अदालत में सुनवाई की गई थी तो उसका हो सकता है कि जो जमानत होती है वो ऊपर पूरी स्टडी करी जाती है, उसके अंदर पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है आखिरकार, क्योंकि ऊपर जज भी बैठे हुए हैं। वहां से जो पिछले जगह बात कर रहे हैं, जब उनका अरविंद केजरीवाल को चुनाव समय जमानत दी गई तो सिंगल बेंच ने जमानत दी थी, लेकिन नीचे वाली जमानत जो बेंच था उन्हें काम बना कर देता। तो देखिए, इसी तरह से आज भी यही स्थिति है कि अगर नीचे से जमानत मिल जाती है तो ऊपर क्या उनको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्या ईडी इसको भी अपील करेगी? क्योंकि जिसे अंतिम जमानत दी गई है उसमें कहीं ना कहीं ईडी ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो उनकी पार्टी है, लेन देन में यानी कि जो घोटाला हुआ शराब नीति को लेकर के उसमें पूरा इन्वॉल्व है, इनकी स्टेटिंग सामने आई है, पैसे का लेन देन की बात सामने आई है और कुछ सबूत इनके सामने आया है, कुछ बयान ऐसे सामने आए हैं। तो देखना है कि आगे जो बेंच है वो क्या इस पर निर्णय लेती है, क्या नहीं लेती है, क्या अरविंद केजरीवाल को वहां से जमानत मिलेगी, रिहाई होगी? अभी फिलहाल जो जिस तरह से अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी है, कब तक के लिए जमानत? क्योंकि फिजिकल टर्म्स में देखा जाए तो अभी हालांकि पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई का मामला चल रहा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिली, वो कब तक के लिए, क्या कुछ टाइम पीरियड उसका? देखिए, अभी उसका कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन उनको अंतिम जमानत दे दी गई, लेकिन समय और टाइमिंग नहीं बताया गया है कि उनको कब तक का रहेगा, क्योंकि अभी जो फाइल है वो आगे गई हुई है, आगे जाने बाद 3 सदस्यीय बेंच के पास। जी, क्योंकि कल शनिवार है, परसों संडे है, छुट्टी का समय भी है, इसका दिन जब बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, सुनवाई होगी, तो देखिए उसका भी समय और लगेगा इसमें। लेकिन उससे पहले यानी बिल्कुल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत जरूर दी गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। लेकिन कैच यहां पर यही है कि अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई के मामले में जेल में फिलहाल बंद है। जब तक सीबीआई से उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है, जब तक सीबीआई के मामले में अदालत यहां पर कुछ फैसला नहीं देती, तब तक अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो है जेल में ही बंद रहेंगे। हालांकि 17 जुलाई को उस मामले में भी सुनवाई है, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितना बढ़ती है और कितना कम होती है, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वही जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झूठे केस लगवाकर सच को कब तक कैद में रखेंगे मोदी जी? पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। तो यह हमने आपको ट्वीट पढ़ाया, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, यह ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, उस बात को लेकर जमकर केंद्र सरकार और मोदी सरकार को घेरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलना आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत बताया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के मामले को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट उचित आदेश पास करने में समर्थ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाथरस कांड के लिए आप पहले हाईकोर्ट का रुख करें, हाईकोर्ट उचित आदेश पास करने में समर्थ है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में जिस तरह से भगदड़ कांड हुआ था, इस दौरान 121 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप पहले हाईकोर्ट का रुख करें, हाईकोर्ट में जाकर मामला चलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, यानी हायरार्की फॉलो करें। तो हाथरस कांड पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है याचिकाकर्ता को, और साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करने में समर्थ है, उचित आदेश पास करने में समर्थ है। तो हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। एफआईआर में दोषी जो है, मुख्य अपराधी जो है, वो सेवादार को बनाया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई से इनकार करते हुए पहले हाईकोर्ट जाने का जो है सलाह दी है, पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है और साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट उचित आदेश पास करने में समर्थ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हाथरस में भगदड़ कांड में 121 लोगों की जान गई थी, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर रुख किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पहले हाईकोर्ट जाइए। बिल्कुल लिया, जिस तरह से हाथरस में सत्संग के बाद जो भगदड़ मची थी और 121 लोगों की मौत हो गई थी, और इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया था, और साथ ही साथ इस मामले की अब एसआईटी रिपोर्ट भी शासन को सौंपी जा चुकी है, जिसके आधार पर ही यह कार्रवाई हुई। और बात करें अगर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इसके पीछे जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर एक्शन लिया जाए, और साथ ही साथ यह भी मांग की गई थी कि ऐसे आयोजन जो होते रहते हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए। और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ गेंद फेंक दी है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल अब जिस तरह से इस मामले को लेकर अदालत में भी पहुंच चुका है मामला, और साथ ही साथ अगर यानी अब हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, क्या माना जाए हाईकोर्ट में कब इस मामले पर सुनवाई? जी बिल्कुल, जिस तरह से यह मामला हुआ है और हादसा हुआ है, इसको लेकर सभी स्तब्ध भी हैं, और यही वजह रही कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और साथ ही साथ सभी पहलुओं की रिपोर्ट भी तलब करेगा सरकार से, और इस मामले में जो भी जांच की जा रही है, चाहे एसआईटी रिपोर्ट हो या फिर एसडीएम की रिपोर्ट हो या फिर न्याय आयोग की रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट तलब की जाएगी। और जिस तरह से लापरवाही का मामला यहाँ पर देखने को मिला है, इस पर जो है हाईकोर्ट कार्रवाई का भी निर्देश जिस तरह से मोहम्मद आसिफ याचिका में साफ तौर पर जो लापरवाह अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है, जो कि पहले ही हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों को, क्योंकि एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को यहां पर निलंबित कर दिया है। क्या माना जाए, याचिका में क्या कुछ और चीजें भी और बिंदु भी शामिल किए गए हैं? बाबा पर कार्रवाई की बात की गई है, बाबा के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात? जी बिल्कुल, यह याचिका में 3 ऐसे पहलू हैं जो काफी आम है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो याची ने कहा है कि जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सुरक्षा व्यवस्था का जो मानक है उसे पालन नहीं किया गया था, और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से स्वयंभू बाबा और पाखंडी बाबा ऐसे आयोजन करते हैं, और साथ ही साथ जो भोले भाले श्रद्धालु होते हैं उनका समय बर्बाद करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से
अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि जिस तरह से अभी तक भोले बाबा को ना पुलिस तलाश पाई है और ना ही एसआईटी की टीम भोले बाबा को से पूछताछ कर सकी, तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती और अन्य राजनीतिक दल लगातार भोले बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है यह भी काफी लचर दिख रही है और सभी जो लेकिन जिम्मेदार है भोले बाबा के खिलाफ कुछ भी एक्शन यहाँ पर क्यों लेने से कतरा रही है, पुलिस हो या सरकार हो? आखिर क्यों अधिकारियों पर एक्शन हो गया, जो सेवादार है उन पर एक्शन हो गया, आखिर भोले बाबा पर एक्शन कब, और आखिर वजह क्यों बचाया जा रहा है? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से जो देखने में आ रहा है और जिस तरह से अब सरकार विपक्षियों के निशाने पर भी आ गई है और एसआईटी की रिपोर्ट में जिस तरह से भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है, इसको लेकर भी अब लोगों की मांग भी तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती की मांग की बात करें तो उन्होंने भोले बाबा पर कड़ा एक्शन लेने की बात भी कह रही, लेकिन और जिस तरह मोहम्मद आसिफ से ये भी समझना होगा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें रिपोर्ट में एसआईटी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भोले बाबा की भी अहम भूमिका है, क्योंकि चरण रच के लिए उन्होंने ही लोगों को उकसाया, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मची। तो आखिर उस सब के बावजूद, एसआईटी की रिपोर्ट के बावजूद जब एसडीएम और अधिकारियों पर एक्शन होता है, क्योंकि तो फिर आखिर भोले बाबा क्यों एक्शन से बच रहे हैं? आखिर क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं? डर इतना कि अभी तक पूछताछ के लिए तक नहीं बुलाया गया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से भोले बाबा जांच के दायरे में आ गए हैं और जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि बाबा और उनके जो सेवादार हैं श्रद्धालुओं को चरण रज लेने के लिए उकसाया था और इसके बाद हादसा हो गया और इस हादसे में ब्लैक कमांडोज का भी जिक्र किया गया है जो बाबा के साथ साए की तरह रहते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो पुलिस है भोले बाबा और उनके निजी कमांडोज को बचाने की कोशिश कर रही है और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि बाबा के रसूख के चलते अब हाथरस पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती बाबा और उनके कमांडो। बिल्कुल, और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल और जमकर इस मामले पर राजनीति भी हो रही है, तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जिस तरह से मामला अब अदालत पहुंच गया है और याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही कि कैसे समझा जाएगा कि कौन सा बाबा असली और कौन से बाबा नकली, और अगर नकली जो है किस तरह से उनके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया जाएगा, इस चीज के लिए शायद थोड़ा और इंतजार। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां यूपी आम महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है, यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25 से 30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी, आप पश्चिम में जाएंगे सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटौल आपको मिल जाएगा। आप अमरोहा में आएंगे दूसरी प्रजाति आपको मिलेगी, लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी, बस्ती में जाएंगे वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा, गोरखपुर में जाएंगे गौरजीत मिल जाएगा, वाराणसी जाएंगे लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। आप सोचिए कि जब विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं था, इतना आगे नहीं था, तब हमारा बागवान, हमारा अन्नदाता किसान नई नई वैरायटी देने में तत्पर रह करके कार्य करता था। आम की फसल को बचाता था, उसको कीड़ों से बचाता था, उसे हर प्रकार से एक नए तरीके से लगाने की तैयारी करता था। और आज जब सरकार सुविधा दे रही है, सरकार ने तमाम प्रकार से सुविधाएं देनी प्रारंभ की हैं, सरकार ने तमाम प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है, उन स्थितियों में इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा
और अपने उत्पादन को इतना बढ़ाना होगा कि घरेलू मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम मुनाफा कमाने के लिए दुनिया की मार्केट में भी भारत के आम को, उत्तर प्रदेश के आम को भेजने की तैयारी कर सके। इसके लिए आम महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए हैं जो इस आम की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। तमाम अन्य संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं इस अवसर पर भारत बायोटेक के अपने डॉक्टर कृष्णा इला को भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहां के प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया है, यह एक अच्छा प्रयास है। और सचमुच यह प्रयास ये बताता है कि सरकार, स्टेक होल्डर और किसान तीनों मिलकर के अगर कार्य करना प्रारंभ कर लें तो किसान की आमदनी को मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक बागवान और किसानों के बारे में जो अनेक कार्यक्रम यहां प्रारंभ होने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला यहां तैयार की गई है, जिसमें यहां पर इस कार्यक्रम के बाद यहां पर सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बायर सेलर मीट के माध्यम से भी इसके विपणन और निर्यात की संभावना के विषय पे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के द्वारा आम के विपणन हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में जो उसके स्टैंडर्ड है, जो उसके मानक हैं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आम की सुरक्षित तुड़ाई एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर भी यहां पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा प्रगतिशील आम और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता युक्त आम उत्पादन के संबंध में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी और साथ साथ आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य भी आपस में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से इसके बारे में समस्याओं के समाधान का भी कार्य यहां पर होगा। तो आप राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी आम महोत्सव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।